will now move to the next session. So it's my honor and privilege to introduce Dr. Ramakant Angirasji, who's our next speaker. Angirasji is a distinguished scholar in the field of Sanskrit with a vast experience and expertise in Oriental and medieval knowledge systems, philosophy, and literature. He's presently serving as the president of Darshan Yoga Sansthan in Dalhousie, Himachal Pradesh. Born on July 25, 1936, Dr. Angiras holds impressive qualifications, including a Shastri degree, MA in Hindi and Sanskrit, and a PhD. Throughout his career, he's made significant contributions to academia and Sanskrit education. He served as a professor of Kalidas chair in the Department of Sanskrit at Punjab University, Chandigarh, where he taught for 42 years. His dedication to teaching is evident through the guidance and supervision of numerous MPhil and 26 PhD students. His expertise has been recognized globally, and he has served as a visiting professor at Charles University in Czechoslovakia. He's also held the position of fellow editor at PHIS PIC, Indian Council of Philosophical Research, MHRD in New Delhi, and he was a fellow at the Research Institute of Himalayan Studies in Shimla. He was also a fellow of the Senate at Punjab University, Chandigarh. As a founder member of Saraswatam, an association of Sanskrit scholars in Chandigarh, Dr. Angiras has actively contributed to the promotion and preservation of Sanskrit language and culture. His knowledge and insights have been shared through lectures delivered at prestigious institutions such as the Darshan Yoga Sansthan in Italy, Oxford University, England, and Woodstock in the United States. Dr. Angiras has published 4 noteworthy books that delve into subjects such as Shankar Vedanta, Tantra, etymology, and philosophical interpretation. His research papers, numbering more than 70, have been featured in esteemed research journals. Additionally, he has participated in and chaired academic sessions in national and international seminars and conferences held at various universities. His contributions and scholarly achievements have garnered recognition and accolades. Dr. Angiras received the prestigious Veni Prasad Upadhyay Memorial Himatkarsh National Award in 96-97. In 2008, he was honored with a cash award of ₹1 lakh by the Shankaracharya of Sri Matha of Banaras for his outstanding scholarship and contributions to Sanskrit, art, literature, and philosophy. In 2015, he was bestowed with the award of recognition by the Chandigarh Sahitya Academy. Dr. Ramakant Angiras अद्वैत वेदांत, कश्मीर शैविज्म, भक्ति परंपरा के ज्ञान के सागर है। व्यापक ज्ञान, विद्वत्ता एवं संस्कृत के प्रति समर्पण उन्हें भारतीय ज्ञान परंपरा के एक प्रज्वलित दीपक के रूप में स्थापित करते हैं। हमारे लिए यह गौरव की बात है कि आज वे आचार्य अभिनव गुप्त के संपूर्णता प्रत्यय की प्रासंगिकता पर हमें संबोधित करेंगे। डॉक्टर अंगिरस, आपका स्वागत है आज। ओम अनस्तमित भारूपस्तेजसामन्तं सामपि ये पूर्णतयदन्तश्च तेजांसि तमांसि। प्रोफेसर श्री नागराज पतूरी जी, जिनके कॉल एवं सभागार में उपस्थित सभी विद्वज्जन, एक मुझे अवसर प्रदान किया गया है, इसके लिए मैं आभार व्यक्त करता हूँ सबसे पहले, क्योंकि ये एक संवाद करने के लिए लगता है कि इस उम्र में भी आदमी सोचता है कि कहीं कोई संवाद एक होना चाहिए और वो संवाद बड़ा सार्थक होना चाहिए। कोई तो सार्थक संवाद जीवन में बहुत कम मिलता है, निरर्थक संवाद बहुत मिलता है, सार्थक संवाद बड़ा ही कम मिलता है। तो इसलिए इतने विद्वान लोगों का प्रवचन सुनना और ये सारे उस ज्ञान का फिर से एक आकलन करने का, समझने का, उसको प्रयास करना, बहुत ही आभार व्यक्त करता हूँ। तो मैं अपनी बात अपनी भाषा में कह रहा हूँ। तो देखिए, ये जो प्रश्न आखिर में आया था, दोनों व्याख्यान बहुत ही विद्वत्तापूर्ण व्याख्यान रहे और हम सभी लोग उसके लिए कृतज्ञ हैं। अभी जो प्रश्न उठा था कि अभिनव गुप्त को दार्शनिक क्यों नहीं माना गया, इसका मुझे ऐसे उत्तर लगता है कि अभिनव गुप्त दार्शनिक नहीं थे, कवि थे, ऋषि थे। ऋषि का ये उस समय अगर आप देखें, संदर्भ देखें, तो संदर्भ ये था कि अभिनव गुप्त तक आते आते संस्कृत वाङ्मय की स्थिति ऐसी बन गई थी
कि लोग दार्शनिकता से भी तंग आ चुके थे और वो बड़ी भावुकता से, काव्यात्मकता से भी थे, परेशान थे। तो ऐसी स्थिति बन गई थी कि भवभूति जैसे आचार्य जो नाटककार थे उनको भी ये कहना पड़ा, यत् प्रौढ़त्व उदारता च वचसाम यच्चार्थतो गौरवम तच्चेदस्ति ततस्तदेव गमकम वैदग्ध्य पांडित्य। वैदग्ध्य और पांडित्य का कुछ मेल होना चाहिए। ये वैदग्ध्य और पांडित्य का मेल क्या था कि ये वही बात आ रही थी कि नान ऋषि कवि रिक्तुक्तम ऋषिस्तु किल दर्शनाथ। जो ऋषि नहीं है वो कवि नहीं होता है और जो कवि नहीं है वो ऋषि नहीं होता है। अभिनव गुप्त का मैंने जहां तक पढ़ा है वो कहीं ना कहीं हृदय की ओर उनका झुकाव ज्यादा है। इसीलिए ये ध्वन्यालोक लोचन में जब वो बात करते हैं तो उसको आप ध्यान से जरा देखें। अपूर्वम यद वस्तु प्रथयति बिना कारण कलाम। अब ये एक ही पद से जरा उनके आपने काव्यत्व और दार्शनिकता का जरा आप आकलन करके देखिए कि ऐसा ज्ञान है, ऐसा ज्ञान जिस ज्ञान की बात उन्होंने उसकी विवृति विमर्शनी के प्रारंभ में जो पद्य उन्होंने सुनाया था, पूर्ण व्याकरण अवगाहन शुचि सतर्क मूलोन्मिषद, उसके संदर्भ में और इस श्लोक के संदर्भ में आप जरा आकलन कीजिए। ऐसा ज्ञान अपूर्वम यद वस्तु प्रथयति बिना कारण कलाम जगत ग्राव प्रख्यम निज रस भरात सारे निज रस भरात सारे यत्। अपूर्वम यद वस्तु, अपूर्व वस्तु का जो निर्माण करती है ऐसा ज्ञान, अपूर्वम यद वस्तु प्रथयति बिना कारण कला, उसका हेतु कुछ नहीं है, कारण कुछ नहीं है। अकारण, ये अकारण क्या हो सकता है इसके ऊपर आप जरा विमर्श करें। अपूर्वम वस्तु, अपूर्व वस्तु को जो प्रथन करता है, विस्तृत फैलाता है, उसको ज्ञान गम्य बनाता है, बिना कारण कलाम, बिना किसी कारण कला के, हेतु पीछे नहीं है उसके कोई भी। बाद में आचार्य लोग कह रहे कि हेतु तदुद्भवे, हेतु नहीं है कुछ, बिना कारण कलाम। जगत ग्राव प्रख्यम, ये जगत जो पत्थर के समान कठोर दिखाई देता है उसको जो अपने रस से सराबोर कर देता है, डुबो देता है उसको, जो अपने रस से उस पत्थर को भी बिल्कुल पिघला देता है, उसके अंदर रस भर देता है। क्रम प्रख्योपाख्या, क्रम से जो प्रख्या और उपाख्या, क्रम से प्रख्या और उपाख्या, ये दो शब्दों का प्रयोग वो करते हैं कि प्रख्या वो है जो स्वाभाविक प्रतिभा से पैदा उत्पन्न हो रहा है। स्वाभाविक प्रतिभा का कोई हेतु नहीं होता है। प्रतिभा किसी चीज की हेतु हो सकती है लेकिन प्रतिभा का कोई हेतु नहीं है, बिना तो प्रातिभम ज्ञानम। तो इसलिए कहते हैं कि क्रमात् प्रख्योपाख्या प्रसर सुभगम भासयति यत्। ये काश्मीर शैविज्म का शब्द बीच में डाला, भासयति यत्, जो क्रम से प्रख्या और उपाख्या इन दोनों को प्रकाशित कर देता है। क्रमात् प्रख्योपाख्या प्रसर सुभगम भासयति यत् सरस्वत्यास्तत्वम कवि सहृदाख्यम विजयते। ऐसा जो प्रख्या और उपाख्या से जो कवि को जन्म देता है और जो सहृदय को जन्म देता है, दोनों को एक समकक्ष लेवल के ऊपर ले आए। सहृदय जो उसका आकलन करने वाला है, जो उसका रस का, जो उसका, मैं एंजॉयर शब्द नहीं प्रयोग करता हूं, अनुभूति शब्द का प्रयोग हम करते हैं। अनुभूति, उस रसानुभूति के अंदर जो जाने वाला है उसको जाने वाला है।
एक कवि और दूसरा सहृदय। उस कविता का जो ये बात भास ने भी कहीं कही थी कि गुणानाम वा विशालानाम कर्ताराणाम च नित्यशः। ये रचना करने वाले, काव्य रचना करने वाले बहुत मिल जाएंगे आपको, लेकिन जो दर्शक हैं उसके जो उसका रसानुभूति करने वाले जो लोग हैं, उसको ग्रहण करने वाले लोग हैं, जिनके सामने कभी अपनी सार्थकता का अनुभव करता है, ऐसे जो सहृदय लोग हैं, वो सहृदय लोग मिलने बड़े दुर्लभ होते हैं। आचार्य अभिनव के समय में ये दोनों धाराएं जो थी, दर्शन और काव्य, ये दोनों दर्शन, ये दोनों आपस में एक तरह से पुंजित हो गई थी, ये समन्वित हो गई थी। इसलिए ये जो दर्शन उदय हुआ, इस दर्शन के अंदर ही केवल मात्र समरसता की बात हुई, सामरस्यम, सामरस्य की बात हुई। प्रतिभा का किसके साथ सामरस्य? वो सामरस्य जो है वो उस पर संबित जो है, पर संबित जो भैरव संबित है, उसका और उसका जो है वो सामरस्य जो है, उस समरसीकरण के माध्यम से अभिनव गुप्त जब गद्य भी लिखते हैं तो मुझे कई बार ऐसे प्रतीत होता है कि वो जो दार्शनिक भाष्य भी टीका उनके, वो उसे न टीका कहने को मन करता। एक विवृति विमर्शनी को ऐसे ही देख रहा था तो उसमें से एक श्लोक सामने आया जिसको संभवतः उन्होंने तंत्रालोक के अंदर कहा है, लेकिन उसमें उद्धृत किया हुआ है, और उस श्लोक ने मुझे ये प्रेरित किया कि मैं आपको ये कहूं कि पूर्णता प्रत्यय के बारे में बात करते हैं। पूर्णता प्रत्यय की बात जो है वो एक ऐसी, मैं समझता हूं कि सार्थक चर्चा है। मोक्ष की बात, मुक्ति की बात, कैवल्य की बात, निर्वाण की बात, दुनिया भर की सब बातें हुई, लेकिन ये पूर्णता का परिचय कुछ अलग बात थी। ये एक पूर्णता जो थी, ये क्रिएटिविटी का, आस्वादन का ये मूल था। पूर्णता शून्यता नहीं थी। विज्ञप्तिवाद, शून्यवाद, ये सारे वाद अपना जोर लगा चुके थे। कश्मीर में उस समय बुद्धिज्म और ये दूसरा सब हो चुका था तमाशा, लेकिन इसके अतिरिक्त जीने के लिए जो पूर्णता चाहिए, वो पूर्णता की अपेक्षा जो थी अभिनव के समय में वो महसूस हो रही थी। इसलिए उनके समय समकालीन जो कवि लोग थे वो भी ये कहते थे, कवयः पंडित कवयः तानव मनता तो केवलम गवयः। कवि तो वही हैं जो पंडित कवि हैं, पंडित भी हैं और कवि भी हैं। दुनियादारी भी उनको समझ है और अध्यात्म की भी पकड़ है उनकी, ये सामरस्य है। कवि और पंडित का सामरस्य उस समय हो रहा था, इसलिए वहां पर दार्शनिक होना बहुत बड़ी बात नहीं थी। इवन मैं नहीं समझ पाता हूं कई बार कि आचार्य शंकर को भी कई मानों में दार्शनिक माने, जहां उनको इसी तरह से, क्योंकि वो भाष्यकार हैं, भाष्यकारों को क्या दार्शनिक रूप में पक्ष उनको स्वीकार किया जा सकता है, या केवल किसी वैयाकरण को वैयाकरण ही कहा जा सकता है? वैयाकरण जो थे वो लोग भी वहां पर शब्द ब्रह्म में जब प्रवेश करने का प्रयास करते हैं तो वो अपनी दार्शनिकता से परे चले जाते हैं। जैसे आज का मॉडर्न साइंटिस्ट जो है वो अपने न्यूक्लियर साइंस में से प्रविष्ट होता हुआ आगे जाकर के कहता है कि मैं खो जाता हूं अपने आप में कहीं, वहां मेरी बुद्धि, वहां मुझे आइंस्टाइन भी कहने लगता है ना कि यहां से आगे कुछ अद्भुत सा, कुछ वैलक्षण्य, कुछ वैचित्र्य। तो ये वैचित्र्य जो था, ये अभिनव गुप्त ने इसका साक्षात्कार 20 गुरुओं से जो उन्होंने प्राप्त किया, 20 गुरुओं के पास क्यों नहीं शांत हुए? ना तो कोई पंडित बनने का शौक था, पांडित्य घर में पड़ा था, कोई ऐसा नहीं था। और फिर दूसरा ये था कि दार्शनिकता का भी बहुत, दार्शनिकता का संघर्ष जो था बराबर चल ही रहा था। तो इसलिए वहां पर ये था कि एक ऐसा दर्शन जो जीवन को जीने की दिशा दे,
एक ऐसा दर्शन जो केवल बौद्धिकता मात्र, आडंबर मात्र न बन के रह जाए। उस समय का अगर आप काव्य पढ़ेंगे तो मैं कई बार आश्चर्य करता हूं, इस कश्मीर संप्रदाय के जो प्रमुख ऋषि माने जाते हैं दुर्वासा, दुर्वासा के स्तोत्रों का आप अगर पाठ करके देखें तो आपको पता लगेगा कि वे दार्शनिक है या कवि है। वो कहते हैं कि ये, मैं बड़ा आश्चर्य करता हूं इस बात से, दुर्वासा जब इसको काव्य ही पापठित किमप्य विदुषाम जोगुष्यमाणे पुनः, ये अविदुषाम काव्यम पाप, ये काव्यों का पाठ करने से किम तेर व्याकरण विबोधित्या किम वा विधानश्या, ये बहुत व्याकरण पढ़ लेने से भी क्या क्या हो गया, क्या हुआ, कुछ नहीं। किम वा विधानश्या, विधान की श्री बात कहने का अंदाज प्राप्त हो गया, क्या हुआ, कुछ नहीं। ये तैरम्ब नभो भवीति सुकवि तावत तव श्रीमतो यावन नानुसरी सरीति सरणिम पादाब्जो पावनिम। हे अम्ब, हे मां, जब तक तेरे चरणों का स्पर्श हो करके, यावन नानुसरी सरीति सरणिम, तुम्हारी गति को जब तक नहीं छू लेता है। अभिनव गुप्त के अगर आएंगे तो आप तुरंत आपको देखेंगे तो वो अभिनव गुप्त क्या कहते हैं, तब च काचन न स्तुति रंबिके सकल शब्द मई किलते जानो। मैं कहा, कौन सा कैसा क्षण है मेरा, एक भी क्षण ऐसा नहीं है जब तुम्हारी स्तुति नहीं हो रही है। ये पूर्णता है। तब च काचन न स्तुति रंबिके सकल शब्द मई किलते जानो। तुम्हारी तो सारा वो बिना शब्द के, शब्दानाम जननी तुमत्र भुवने वाग्वादिनी इत्युच्च से, शब्दानाम जननी तुमत्र भुवन वाग्वादिनी, तो वो जो उसकी परावाक है, वो जो विमर्श रूपिणी पराशक्ति है, उसको वो कैसे, उसको वो कहते हैं कि वो हृदय में अनुप्रवेश होने से उसका साक्षात्कार होता है। अभिनव को ये साक्षात्कार ये हुआ, और इस साक्षात्कार के बाद ऋषि बनता है, फिलोसोफर नहीं बनता है। फिलोसोफर जो होता है वो लव फॉर नॉलेज होता है, इंटेलेक्चुअल, उसमें जार्गन के अंदर ज्यादा मजा आता है, उसमें बौद्धिकता का आस्वादन करता है, अपनी चिति में प्रवेश कालिदास करते हैं। जिसने पूछा मुझे कि ये भगवान शंकर किसका ध्यान कर रहे थे, जब कामदेव गया तो उन्होंने देखा कि शंकर ध्यानस्थ बैठे हैं, उनमें प्रवेश कैसे करूं मैं, उनको रास्ता नहीं सूझ रहा। तो मैंने ध्यान आया उसका कि मनोन्वद्वार निषिद्ध वृत्ति हृदय व्यवस्थाप्य समाधि वश्यम। अब कालिदास को मैं कश्मीर शैविज्म का प्रथम आचार्य मानने को भी मेरा मन बहुत करता है, क्योंकि उसका अभिज्ञान शाकुंतल और उसकी कविता में कुमार संभवम, जब इनको देखता हूं तो मुझे लगता है बहुत सारा उसके अंदर कश्मीर शैविज्म की जो अनुभूति परखता है, जो संवेदना है, जो संवेदनशीलता है, वो संवेदनशीलता ही जीने की वस्तु है। बौद्धिकता उसका एकमात्र आवरण है। उसका उस आवरण के पीछे मनुष्य ज्यादा चलता है, क्योंकि वो आवरण को ही पकड़ता है। तो वहां पर वो ये देखते हैं हम कि मनोनवद्वार, कामदेव ने देखा कि भगवान शंकर समाधिस्थ हैं। नवद्वार निषिद्ध वृत्ति, 9 द्वार जो हैं देह के, निषिद्ध वृत्ति कहीं से भी एंटर करने का, कहीं कोई प्रलोभन, काम, क्रोध, लोभ, मोह एंटर कर ही नहीं सकता। तो आखिर में कालिदास क्या कहते हैं कि उसे यदक्षरम वेद विदो विदुस्तम आत्मानम आत्मन्यवलोकयन्तम, वो आत्म में ही आत्म का अवलोकन कर रहे हैं। उनका शिव किसको देख रहे हैं? अरे मैंने कहा किसी को नहीं देख रहे हैं। आत्मानम आत्मन्यवलोकयन्तम,
आत्म को ही, आत्मने को ही अपने आप में देख रहे हैं। ये जो आत्मदर्शन है, इस आत्मदर्शन के लिए जो तीव्रता चाहिए वो हृदय से आती है, वो तरलता से आती है। वो जो समावेश है वो बौद्धिक समावेश नहीं होता है। समावेश जो होता है हृदय से उठता है। इसलिए जहां पर भी वो चर्चा करते हैं वहां पर वो कर देते हैं हृदयम। ये हृदय क्या चीज बला है, इसके अंदर पूर्णता आती है। ये हृदय क्या है? तो वो कहते हैं कि प्रकाश विमर्श द्वितीय प्रकाश विमर्श द्वितीय मेलापक लक्षण अंतस्तत्व हृदय वित्युच्यते। उनके परवर्ती महेश्वरानंद इस प्रकार से कहते हैं कि जहां प्रकाश और विमर्श का यहां पर ऐक्य सध रहा है, एक दूसरे में अनुप्रविष्ट हो रहे हैं, वहां पर वहां वो हृदय है। तो इस हृदय से जब उनके श्लोकों को आप पढ़ते हैं तो वो न योगी वो योग को जानते हैं, सब तंत्रालोक के अंदर सब विद्या उनका, विद्या में विशेषज्ञ हैं, इसमें कोई संशय वाली बात नहीं थी। लेकिन जब वो ध्वनि लोचन के अंत में एक श्लोक देते हैं कि ये जो वाग्धेनुर दुग्धेनम रसम यद बाल लीलया वत्स लीलया न तेनास्य समः कार्य है योगी भी दुह्यते ही है। ये जो वाग्धेनु है, ये जो वाक रूपी गाय है, वाक रूपी जो धेनु है, ये बाल तृष्णा, उस बछड़े की तृष्णा से जो अपने आप अपने भीतर से रस को चुआती है। वाग्धेनुर दुग्धेनम रसम यद बाल तृष्णया, उस बाल की तृष्णा से, अपने बच्चे की तृष्णा से उसको एफर्ट नहीं करनी पड़ती है, दूध उतारना है मुझे, अपने आप उतर आता है। न तेना से न योगी भी न तेना से समः कार्य है योगी भी दुह्यते ही जा। योगियों के द्वारा जो अणवोपाय, शाक्तोपाय, शांभवोपाय, अनुपाय में जाने के लिए जो दोहन किया जाता है, उससे जरा उसको अलग करके समझना चाहिए। ये किसके लिए कह रहे हैं? वो ये योगी और सहृदय के बीच में वो समझते हैं। योगी को सहृदय बना रहे हैं, सहृदय को योग में ले जा रहे हैं। जो सहृदय है उसका योग कैसे बनता है, उसकी समाधि कैसे बनती है? बहिरंग, बाहर जो प्रसार है, विश्व का जो प्रसार है, उस विश्व प्रसार से उनका। और जो योगी है वो अंत प्रसार, जब अंत भीतर की तरफ उद्यमो भैरव, वो भैरवावस्था जो है वो सबका निमीलन कर लिया है। उन्मीलन के अंदर समाधि बनती है। थिएटर के अंदर क्या कर रहे हैं अभिनव भारती के द्वारा? किसकी अभिव्यक्ति कर रहे हैं? संबित की अभिव्यक्ति कर रहे हैं। किससे कर रहे हैं? विभावानुभव आदि के क्रम से कर रहे हैं उत्सव संबित को। प्रत्येक जो दर्शक वहां आया है उसको अब आत्म का साक्षात है, वो क्या पी के जाएगा उसमें? कालिदास उसे किस प्रकार से कहते हैं? वो कहते हैं कि नहीं, ये रस जो है, ये अनुभूति जो है, अनुभूत्यात्मक जो रस है, ये बड़ा रेयर है। इसको कौन प्राप्त करता है? बड़ा लकी होता है जो इसको प्राप्त करे। तो हमारे साहित्य के माध्यम से जो वाग्धेनु का जो दुग्ध था, उसके द्वारा वो नरिशमेंट किसकी कर रहे हैं? पर इसका संवर्धन कर रहे हैं सहृदयों का, जो वाग से वाग के माध्यम से आए हैं। और योगियों के लिए वो छोड़ देते हैं समाधि योग। वो जो बाकी के उपाय हैं, उपायों की प्रक्रिया अणवोपाय है, उसके द्वारा वो बौद्धिक रूप से विश्लेषण भी देते हैं, उनको पूरा व्याख्या देते हैं कि स्वातंत्र क्या है, तुम क्यों अपूर्ण अपने आप को मानते हो? अनुता के योग के कारण स्वातंत्र हानि बोधस्य, बोध की स्वातंत्र हानि,
ज्ञान है लेकिन बड़ा लिमिटेड सा, बड़ी परिच्छिन्न सा, कला कंचुक से ढक गया है, इसलिए वो सिकुड़ा गया है, बहुत संकुचित हो गया है। इसलिए कहते हैं कि नहीं, ये जो है ये स्वातंत्र्य हानि, स्वतंत्रता तुमने अपना स्वातंत्र्य जो है तुम्हारा, स्वातंत्र शक्ति का यहां स्वयं ही संकोचन कर लिया है। और बोध से आपका स्वतंत्रता, और ज्ञान में भी कोई स्वातंत्र नहीं रहा, पुस्तकों से ही पढ़ करके इधर से उधर से सब इकट्ठा करके स्वातंत्र नहीं रहा। बोध में भी स्वातंत्र नहीं रहा, स्वतंत्रता का भी बोध नहीं रहा, ज्ञान भी स्वतंत्र नहीं रहा। अनुता के योग से ये आणवोपाय क्रम उनको फॉलो करना चाहिए। आणवोपाय की प्रक्रिया को उन्होंने बहुत विस्तार से कई साधनाओं के माध्यम से, लेकिन एक बात जो उनकी बहुत महत्वपूर्ण बात है कश्मीर शैविज्म की, एकमात्र ऐसा, अब दर्शन शब्द का प्रयोग मैं दृष्टा के माध्यम से, दृष्टि के एंगल से प्रयोग करना चाहता हूं, फिलोसोफर के माध्यम से नहीं, दृष्टा के माध्यम से, तत्वदर्शिता के माध्यम से, ऋषि के माध्यम से। ऋषिस्तु के लिए दर्शनाथ, ऋषि जो है वो दर्शन से होता है, उसको दिखाई देता है सब। तो वो जितनी भी बात जहां वो करते हैं आचार्य अभिनव, तो वो उसके अंदर अपनी बात को ये आणवोपाय से उठा करके वो शाक्तोपाय में ले जाते हैं, शाक्तोपाय से उठा करके शाक्तोपाय में ही वो कहते हैं कि ये मनन जो है महामंत्र बीजानुभव, अनुसंधान की ओर ले जाते हैं, उपासना की ओर ले जाते हैं। दार्शनिकता को, वो जो बोधात्मकता थी आणवोपाय के अंदर, जो सारे बाहर के प्रयोग थे, उनको कहाँ अनुसंधान का अर्थ क्या हो गया? उन सब का एकीकरण करके, उन सब का एकीकरण करके, उनका तादात्म्य करके, उनको महाहृदय के अनुसंधान, महाहृदय के अंदर उसको प्रविष्ट कर दिया। और महामंत्र से प्रविष्ट होकर के वो मंत्र का जो वीर्यानुभव है, वो मंत्र का वीर्यानुभव क्या है? वो परम शिव ही है, वो पराहंता जो है वही पूर्णता है। तो इस पूर्णाहंता के तक पहुंचने का मार्ग जो है उसको भी तंत्रालोक में उन्होंने रख दिया है। लेकिन उनके सामने अपने युग की ये दो, प्राय है इस विषय में मैंने चर्चा कम सुनी है, लेकिन मैं समझता हूं कि वो एक ऐसा पीरियड है, एक ऐसा समय है जब एक और संस्कृत के अंदर वाग वैभव को लेकर के उत्कृष्ट कोटि के कवि पैदा हो रहे। उस समय में उत्कृष्ट कोटि का जो व्याकरण दर्शन आ रहा है, व्याकरण दर्शन को भी अब इस श्लोक को क्या कहें कि वर्णेभ्यो धातवस्यु विविध पदचयस्तद्भवस्तेन वाक्यम। अब ये श्लोक है, भगवान शंकर की स्तुति कर रहे हैं, भगवान शंकर की स्तुति कर रहे हैं दुर्वासा। तो स्तुति करते हुए वर्णेभ्यो धातवस्यु, वर्णों से धातुएं बनी, विविध पदचय, उससे विविधों पदों का चय हो गया। तो तेन वाक्यम तस्मा जातम प्रमाणम विविध निगमनम तेन सिद्धांत जालम, उसमें बड़ी बड़ी थ्योरियां पैदा हो गई, बड़े बड़े दर्शन पैदा हो गए उसमें। तस्मा जातम प्रमाणम विविध निगमनम तेन सिद्धांत जालम, उससे सिद्धांतों का जाल पैदा। तस्मा नानात्म विद्या, उससे आत्मविद्याओं के स्कूल बन गए। ये यहाँ स्कूल है, ये वो स्कूल है, ये केवलाद्वैत है, ये शुद्धाद्वैत है, ये व्याकरणाद्वैत है, ये शून्याद्वैत है, ये, और लगे हुए एक्सरसाइज करने उसके अंदर। लेकिन त्वंचेदेको द्वितीय क्रम रहित महासंविदात्मा महेश, लेकिन तुम संविद स्वरूप, तुझे इन सबसे तुम एक अलग ही तुम्हारी विभूति होती है। ये सब इकट्ठे होकर के तुम्हारी ओर ही ले जाते हैं, ये सब तुम्हारे में ही मर्ज कर जाते हैं। ये मर्ज करना क्या है? ये है पूर्णता। इस पूर्णता की बात कश्मीर शैविज्म करता है, जब वो ये बात करता है विविधा प्यागमेर भिन्ना पंथान सिद्धि है तवा। बहुत सारे आगमेर भिन्ना पंथाना सिद्धि है तवा, पंथाना
नाना आगमों से, बौद्ध आगम, जैन आगम, शैव आगम, शाक्त आगम, वैष्णव आगम, सब नाना प्रकार के आगम, वो सब प्रकार के आगमों से हम पंथान सिद्धि है तब तो वही निपतम क्योंकि जाह्नवी आदम यथार्थ, वो सब के सब आगम तुम्हारे अंदर ऐसे ही जैसे समुद्र के अंदर सारी नदियां अनुप्रविष्ट हो जाती। इस पूर्णता का चिंतन भगवत गीता के अंदर अभिनव गुप्त का भाष्यमा देख लेना चाहिए, गीतार्थ संग्रह के अंदर। यहाँ पर वो आपूर्यमाणम अचल प्रतिष्ठम समुद्रमाप प्रविशन्ति यद्वत् तद्वत् कामायम प्रविशन्ति सर्वे स शान्तिमाप्नोति न काम काम। वो जैसे समुद्र में नदियां अनुप्रविष्ट होती हैं, इसी तरह से कामनाएं जिसके अंदर अनुप्रविष्ट होती हैं वो कामनाओं के पीछे नहीं दौड़ता है, स शान्तिमाप्नोति। कश्मीर शैव दर्शन आपको किसी तार्किकता के अंदर न दे करके एक जीवन की पद्धति दे रहा था, जीने का अंदाज क्या हो, जीवन की शैली क्या हो, एक सार्थकता का क्षण चाहिए। सार्थक होने के लिए कितना चाहिए, सार्थकता की अनुभूति के लिए क्या चाहिए, एक क्षण पूर्णोहम, एक बार उसमें आ जाता है पूर्णोहम शिवोहम चिदानंद रूप शिवोहम शिव। इस अनुभूति के आते ही पूर्णता उतर आती है। अपूर्णता, इससे पहले जो व्याख्यान हम कर रहे थे वो अपूर्णता की चर्चा बहुत पहले हो गई थी। पूर्ण शब्द का भी बहुत व्याख्यान उपनिषद के अंदर भी आ चुका था। पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। लेकिन वहां से पूर्णता को लेकर के दूसरे जो वैष्णवागम थे उन्होंने भी कहा कि जस स्मृत्या जनामुक्त्या तपो यज्ञ क्रियादिषु न्यूनम संपूर्णताम याति सिद्धो वंदे तमच्युतम। कुछ न्यूनता है जब वो पूर्णता में चली जाए, बदल जाती है। न्यूनता क्या है, पूर्णता, कमी, त्रुटि, जिसके स्मरण मात्र से ही न्यून जो है वो पूर्णता में बदल जाता है। मैं उसको प्रणाम करता हूं। लोगों ने नाम रखे पूर्ण चंद्र, बहुत लोगों का नाम होता है। लोक भाषाओं के अंदर भी पूर्ण शब्द का बहुत प्रयोग हुआ है। मरना नहीं कहते थे, मर गया नहीं कहते थे, पूरे हो गए, पूरा हो गया। देह त्याग नहीं करते थे, तो पूर्ण हो गए। ये पूर्णता का अनुभव जो था, इसको कश्मीर शैविज्म ने एक अलग पद्धति से, अलग पद्धति कश्मीर शैविज्म की क्या थी, सामरस्य की पद्धति थी। वो सामरस्य क्या था, समरसीकरण क्या था कि भीतर से ही अभिनव गुप्त उसके अंदर जब कहते हैं मत ये बोधित मिदम, तंत्रा लोक के अंदर ही मत ये बोधित मिदम, मेरे से ही ये सब तो उदय हुआ था। मत ये बोधित मिदम मैं ये सुप्रतिष्ठितम, ये मेरे में ही सुप्रतिष्ठित है। मद भिन्न विधम सर्वम त्रिधोपाय स शांभव। शांभवोपाय के अंदर जाकर के योगी को ऐसा अनुभव होता है कि ये सब मेरे से ही, मेरे अतिरिक्त और दूसरा कोई है ही नहीं है। मैं इसकी बात करूं, बात क्या करूं? तो सार्थकता का जो क्षण है वो उसका नाम पूर्णता है कि जहां चरितार्थ हो जाता है, कृतकृत्य हो जाता है, विमुक्त हो जाता है। तब वो कहते हैं न ब्रह्मा विष्णु रुद्रौ सुरपति रमरा नासुरा नैव पृथ्वी नापोग्निर्नैव कालम न च रवि शशिनौ नो दिशो नैव काल। फिर क्या है, नो वेदा नैव यज्ञा न च रवि देश कालौ। केवल हे परम शिव सच्चिदानंद मूर्ति, केवल मात्र तुम वहां होते हो। वो वेदा नैव यज्ञा न च रवि शशिनौ नो दिशो नैव काल है। वो ऐसी स्थिति के अंदर एकमात्र ये सारी ज्योतियां, बाहर की ज्योतियां भी सब बुझ जाती हैं। ये सब
ये बाहर का जो ज्ञान है ये भी सारे का सारा चला जाता है। वो स्थिति जो है उसमें सच्चिदानंद मूर्ति, ये सच्चिदानंद मूर्ति शिव, वो उसमें तुम होते हो, तो मैं तुम्हारे पास होता हूँ, ये मेरा उसमें पूर्णता का क्षण, मेरी चरम अनुभूति का चरम क्षण है। इसलिए मैं समझता हूँ कि जब अपूर्णता हमारे चारों तरफ, वर्तमान में जो रेलेवेंस की थोड़ी सी बात कहूँ तो उसमें ये है कि जो स्थितियां पहले भी ऐसा था, किसी सूक्त के अंदर एक वैदिक मंत्र ध्यान में आता है कि जब श्री की भगवती की स्तुति कर रहे हैं तो अथर्ववेदी श्री सूक्त में क्षुत पिपासाम अलाद ज्येष्ठाम लक्ष्मीम नाशयाम्य हम अभूतिम असमृद्धिम च सर्वाम निर्णुतम गृह। प्रार्थना करते हैं भगवती लक्ष्मी से कि मेरे घर में ये तुम्हारी बड़ी बहन जो अपूर्णता है ना, ये पूर्णता की बड़ी बहन है। कुछ अजीब लग रहा होगा। अपूर्णता क्या है? अपूर्णता का जब बोध होगा तब आप पूर्णता की ओर चलेंगे। अगर अपने आप को जड़ता में ही पूर्ण मान के बैठ गए तो कोई पूर्ण होने की संभावना ही नहीं। इसलिए वो ज्येष्ठा, उसकी बहन, बड़ी बहन है, पहले अपूर्णता का अनुभव तो हो, तब गुरु के पास जाएगा, तब उस पंथा के ऊपर चलेगा। आणवोपाय तब ढूंढेगा, शाक्तोपाय तब ढूंढेगा। तो उस अनुभव के अंदर ले जाने के लिए वो जो बात कहते हैं कि ये जो उसमें क्षुत पिपासा, भूख प्यास मल, ये सब जिसका अंदर रहते हैं, ऐसी जो तुम्हारी बहन अलक्ष्मी है, अलक्ष्मीम नाशयाम्य हम, उस अलक्ष्मी को मैं नाश करता हूं। अभूतिम असमृद्धिम च सर्वाम निर्णुतम गृहात्, हे मां मेरे घर से अभूति को, अनैश्वर्य को, असमृद्धि को मेरे घर से निकालो। इस तरह से ये असमृद्धि, अपूर्णता, ये अपूर्णता है। इस अपूर्णता का अनुभव अनादिकाल से चला आ रहा है। मनुष्य अनादिकाल से अपने बारे में, अपने परिवार के बारे में, समाज के बारे में, मानवता के बारे में क्या चाहता रहा है? एक ही बात चाहता है कि वो कालक्रम से कहीं निकल पाए। काल जो है वो सर्वग्रासी बना हुआ है। बहुत लोगों के लिए काल जो है, कश्मीर शैविज्म में काल से निर्भय हो सकता है, ऐसा आचार्य गोपीनाथ कविराज कहते थे। वहां पर काल संकर्षणी के जो विचार है उसके अंदर, जहां कालातीत होने के लिए बात की जाती है, उस कालातीत होने की स्थिति जो है, बाकी के लोग जो हैं वो काल को सिद्ध करने में लगे हुए हैं, तो फिर दार्शनिक कैसे होगा अभिनवगुप्त? वो कहता है कि नहीं, वो काल संकर्षणी कला जो है वो उसमें काल से परे ले जाने वाली बात कर रहे हैं हम। आप कहते हैं नहीं, टाइम और स्पेस तो यथार्थ है, इस टाइम और स्पेस से इसका उल्लंघन नहीं करना है, इससे हम आगे नहीं बढ़ेंगे। वो कहता है नहीं, उल्लंघन करो। अगर नहीं उल्लंघन करोगे तो फिर फंसे रहो। फिर कश्मीर शैविज्म में आके क्या करना है? फिर अपना ठीक है, जहां बैठे हो, साइंटिस्ट हो, विज्ञान में आनंद करो, ठीक है। तो इसलिए वहां पर ये जो स्थिति आती है कि काल के प्रति प्रत्येक व्यक्ति आज भी ये चाहता है कि वो रोग शोक से मुक्त हो। इस सब से जो असंपूर्णता है, अपूर्णता जो है, उसके कारण ही, अपूर्णता के कारण ये आध्यात्मिक, आदि दैविक, आदि भौतिक व्याधियां ये सारी की सारी आ रही हैं, आज भी खड़ी हैं। साइंस के अंदर एक बार वो पुस्तक देख रहा था मैं, जेम्स जीन्स की फिलॉसफी एंड फिजिक्स, उसके अंदर उसने बड़ा दुख प्रकट किया कि ये जो मॉडर्न साइंस के माध्यम से जो कुछ ज्ञान आ रहा है, जो अर्जित ज्ञान हो रहा है, ये सारा जो अर्जित ज्ञान है, ये सारे का सारा क्या कर रहा है? ये एक डिटर्मिनिज्म के अंदर फंसा रहा है।
जो स्ट्रिक्टली अकॉर्डिंग टू द कॉजल लॉ, जो कार्य कारण सिद्धांत के अंदर बंधा हुआ है। कठिनाई आगे कि कार्य कारण से आप बाहर निकलना नहीं चाहते। न्यायिक तो नहीं निकलना चाहेगा, न्यायिक कहेगा कि नहीं कार्य कारण भाव के बगैर कैसे होगा। अभिनव गुप्त तो नहीं कहेगा कि कार्य कारण भाव में फंसे रहो, वो तो कहते हैं अपूर्वम यद वस्तु, बिना हेतु की कल्पना, बिना किसी कारण कल्पना के वो जो निर्माण कर रही है, उसकी अपनी विभूति ऐश्वर्य है उसका। तो इसलिए वहां पर वो कहता है कि ये एक स्ट्रिक्टली आधुनिक विज्ञान ज्ञान जो है वो मुझे सारा कार्य कारण के अंदर, एक डिटर्मिनिज्म के अंदर, एक नियति के अंदर, कश्मीर शैविज्म ने नियति को क्या माना? कंचुक। कंचुक का मतलब जो उसकी व्यापकता को क्षुद्रता में परिणत कर देता है, जो परम शिवता के अनुभव को उसके अंदर, जीवत्व के अंदर, पशुता के अंदर पशु बना देता है। इसलिए नियति के अंदर कहता है ये विज्ञान फंसा रहा है। ऐसा ज्ञान क्या कर रहा है कि ये ज्ञान एक पिछले ज्ञान से अगला ज्ञान पैदा हो रहा है, उससे अगला ज्ञान पैदा हो रहा है, फिर नई थ्योरी, फिर उसका खंडन, फिर उसके मंडन, फिर खंडन, इसी में चल रहा है सारी दौड़ इसी में। ये कौन कह रहा है? वर्तमान विज्ञान का जो चिंतक है, जो वो उसमें कह रहा है अपने फिजिक्स एंड फिलॉसफी के अंदर कि ये जो सारे का सारा क्रम हमें मिला है, ये सारा ही ज्ञान जो है पूरे का पूरा, ये एक नियतिवाद के अंदर, मनुष्य को नियति के अंदर बांध के चल रहा है। यदि कहीं ऐसा नया ज्ञान मनुष्यता को इस समय मिले, वर्तमान जो टाइम है, सारी मनुष्यता उस पीड़ा को भोग रही है, सारी मनुष्यता उस पीड़ा को भोग रही है, जिस पीड़ा के अंदर मनुष्य जो है एक ऐसे नए ज्ञान की खोज में बेचैन है कि जो ज्ञान एकदम स्पॉन्टेनियस हो। वो शब्द प्रयोग करते हैं स्पॉन्टेनियसली, ऑफ इट्स ओन अकॉर्ड, वो स्पॉन्टेनियस भी हो, ऑफ इट्स ओन अकॉर्ड, तो शायद कुछ एक नया दर्शन कोई पैदा हो सके। शायद वो मनुष्यता के लिए, वो प्रत्येक मनुष्य जो है वो अपूर्णता से विक्षुब्ध है, लेकिन उसको पूर्णता का पता नहीं है कि पूर्णता जो है वो है क्या पूर्णता। कश्मीर शैविज्म उस पूर्णता के प्रत्यय को जब देता है तो वो लोक का बड़ा ध्यान करता है। तो वो उसमें कहते हैं आचार्य अभिनव, उसमें कर्तव्यम ये जो योगी जो है वो अपना जो कर्तव्य है वो स्वयं कर्तव्यम किमपि कल्याण लोक येष प्रयत्नात्, ये लोग जो हैं अपना जो कर्तव्य है उसका ओर ध्यान नहीं दे रहे हैं। स्वयं कर्तव्यम किमपि कल्याण लोक येष प्रयत्नात् नो पारार्थिम प्रतिघटयते कांचन स्वात्मवृत्तिम, ये पारार्थ के लिए, उस परम शिवता के लिए कुछ भी प्रयत्न क्यों नहीं करते? फिर कहते हैं यस्तु त्यक्ता अखिल भवमलः, लेकिन जिसके सारे मल शांत हो गए हैं, आणवमल, माइक मल, कारणमल, तीनों मल जिसके शांत हो गए, जस्तु त्यक्ता अखिल भवमलः प्राप्त संपूर्ण भावा। अब ये पाठ जो मैंने विभृति विमर्शनी का देखा, उसमें मुझे पाठ संपूर्ण भाव शब्द, इसने मुझे संपूर्णता के प्रत्यय के लिए प्रेरित किया। इस श्लोक में ये चाबी थी जिसने मुझे आंदोलित किया। यस्तु त्यक्ता अखिल भवमलः प्राप्त संपूर्ण भाव, जिसने संपूर्ण भाव को, ये संपूर्णता क्या है? ये संपूर्णता हृदय के अंदर अनुभूत होने वाली वो शिव शक्ति का सामरस्य जो है, वो एक ऐसा अद्वैत, अद्भुत अद्वैत है, दूसरे बौद्धिक अद्वैतों से ये एक अलग किस्म का अद्वैत बन रहा है। प्राप्त संपूर्ण भाव है, कृत्यम तस्य, उसका कृत्य, उसके लिए अपने लिए उसे अब कुछ नहीं करना है,
वो केवल मात्र उसे लोक कर्तव्य मात्र, लोक के लिए अब उसको जीना है। वो किसके लिए जीना है? स्वयं तो वो कृतार्थ हो गया, प्राप्त संपूर्ण भाव है। संपूर्ण भाव प्राप्त होने के बाद इसको वो ना मोक्ष कहते हैं, ना निर्वाण कहते हैं, न और उसके अंदर शब्द प्रयोग करते हैं। प्राप्त संपूर्ण भाव, जिसने इस तरह से संपूर्ण भाव प्राप्त कर लिए, कृत्यम तस्य नहीं किंतु लोक कर्तव्य, लोक के प्रति जो कर्तव्य मात्रता है वही उनका एकमात्र। तो उसके अंदर आचार्य ने जो आनंद की स्वरूप भी बनाए, ये कश्मीर शैविज्म है, जो लोक के आनंद की चिंता करता है, अपने आनंद से ऊपर उठ करके जगदानंद की बात करता है। 5-6 आनंदों की कोटियां बना करके सबसे ऊपर किसको रख रहा है? जगदानंद। जहां पर योगी का जो उसका परम शिव का आनंद जो है वो सबका ही आनंद होता है, तो उसका अपने तक नहीं सीमित रहता है, वो सारे विश्व का। इसलिए वो विश्वोत्तीर्ण जो है वही विश्वरूप होकर के, जो विश्वरूप है वही विश्वोत्तीर्णता में जाता है, जो विश्वोत्तीर्णता है उसे वो विश्वरूपता में लाता है। तो मैं समझता हूँ कि वो जो कश्मीर शैविज्म में हमें जो संपूर्णता का प्रत्यय दिया है, उस सारे का सारा अनुभूति मात्र है। अनुभूति परक बहुत है उसमें, तर्क का वो मानते हैं इस चीज को कि देखो, पहले ही जहां लेते हैं पूर्ण व्याकरणावगाहन शुचि, व्याकरण का अवगाहन उन्होंने संभवतः भर्तृहरि को बहुत ही, भर्तृहरि और महाभाष्यकार को बहुत अच्छी तरह से आत्मसात किया हुआ था। पूर्ण व्याकरण में अवगाहन करने से जो शुचि है पवित्र, सत्तर्क मूलोन्मिषत, तर्क नहीं कहा, सत्तर्क मूलोन्मिषत। तर्क को षडंग योग के अंदर भी कश्मीर शैविज्म ने स्वीकार किया है, लेकिन वो सत्तर्क जो है वो दूसरा तर्क नहीं है, वो अलग तर्क है। सत्तर्क जो है वो उसकी टटोल है, अन्वेषण है, अनुसंधान है उसका। प्रज्ञा कल्पलता विवेक कुसुमे रभ्यर्च हृदयवता, प्रज्ञा रूपी कल्पलता के फूलों से मैंने अपने हृदय के देवता शिव की पूजा की है। पीयूषासव सार सुंदर महा साहित्य सौहित्य भाग, साहित्य सौहित्य दो शब्दों का प्रयोग संस्कृत के विद्वान लोग जानते हैं उसको। साहित्य सौहित्य भाग, विश्राम्याम्य हम ईश्वराद्वय कथा कांता सखत सांप्रतम। अब मैंने ईश्वराद्वय कथा रूपी कांता को ही अपना मित्र बनाया हुआ है और आराम करता हूँ, उसी के साथ बात करता हूँ, उसी में जीता हूँ। ये श्लोक अभिनव गुप्त की उस संपूर्ण भाव को प्राप्त होने की मैं समझता हूँ और संकेत करता है कि जब वो कहते हैं कि इतना लिख करके 40-42 ग्रंथ लिख करके जो कहते हैं कि विश्राम्याम्य हम ईश्वराद्वय कथा कांता सखत सांप्रतम, वो उनको संपूर्णता का वो अनुभव हो गया था। तो आज के संदर्भ में मैं समझता हूँ कि यदि हम इस उनकी जयंती के इस पुण्य अवसर के ऊपर स्मरण करके, ऐसे व्यक्तित्व का स्मरण करके उसकी चेतना को, उसकी संवेदना को हृदय के द्वारा ग्रहण कर सकते हैं, तो बहुत हमारे लिए एक सार्थकता का क्षण होगा, एक चरम क्षण होगा। इन शब्दों के साथ मैं समझता हूँ कि मैं पर्याप्त मैंने जो कहना था कह दिया। धन्यवाद। धन्यवाद रमन जी। मैं तो एकदम विभोर हो गई थी, बीच में आपकी बात सुन के मेरे नेत्र चलक गए थे। तो I'm sure that the audience would have had a similar experience too. If we do not see any Q&A questions from the audience for you, आपके लिए भी कोई प्रश्न नहीं, पर फिर भी जैसे मैंने पहले भी कहा था, if the audience members once they watch the session recordings later, if you have a question, please feel free to reach out to us and we'll make sure that we respond to you and we reach out to the venerable speakers and get back the answers for you. So once again, thank you so much रमाकांत जी। और मैं आशुतोष जी को भी धन्यवाद देना चाहती हूँ, क्योंकि
कि उन्होंने इसमें बहुत बड़ा योगदान किया कि आप आज आए और आपने हमें कृतार्थ किया।